آپ تو عورت ہیں، عورت کو اللہ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، وہ چند میٹھی میٹھی باتیں کر لے تو اس کے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ تو اتنی قابل ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، خود لکھتی ہیں، آپ کے قلم میں بہت روانی ہے، بہت طاقت ہے، آپ کی تحریر دل پہ اثر کرتی ہے، آپ کا شعراء و ادبا میں ایک بڑا نام ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، سرکاری افسر رہ چکی ہیں، آپ نے تو اپنے سرکاری عہدے سے بھی کوئی فیض نہیں اٹھایا۔ آپ اکیڈمی کے چیئرمین سے ملیں، وہ تو ہمارے دوست ہیں، ان سے بات چیت کریں، پبلک ریلیشننگ بڑھائیں۔ انفارمیشن منسٹر سے ملی ہیں کبھی آپ؟ آرٹس کونسل کے سربراہ سے کیسے تعلقات ہیں آپ کے؟ کلچر ڈپارٹمنٹ بھی تو ہے وہاں پر، گورنر سی ایم بھی تو ہے، کیس فارورڈ کرتے ہیں، اکیڈمی ادبیات بھی تو ہے آپ کے ہاں۔ آپ نے تو کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ کوشش کا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ اپنا حق لینا چاہیے آپ کو۔ قابلیت تو ٹھیک ہے، مگر خاص کوشش بھی ضروری ہے۔ پرائڈ آف پرفارمنس آپ کا حق ہے، آپ پر تو کئی پی ایچ ڈی ہونے چاہیے، آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنی چاہیے۔ آپ تو ادب کی پہلی خاتون ہیں جن کی اتنی کتب ہیں، اتنی اصناف ادب پہ آپ کا منفرد اور قابل ذکر کام ہے۔ آپ تو عالمی کانفرنسوں مشاعروں کی مجلس صدارت کا بھی حصہ رہی ہیں اور مسند نشینی بھی آپ ملی ہے۔ فیض، عصمت، راغب، منشا، یاد، عطا اللہ قاسمی، شہزاد احمد، احسان اکبر، خالد احمد، اصغر ندیم سید جیسے اہم قلمکاروں نے آپ کے علم و فنون کے مستند اور معتبر ہونے کی دلیل و داد بھی دی ہے۔ آپ اپنے مزاج میں تھوڑی تبدیلی لائیں۔ ساری ادبی تنظیمیں اور شعراء و ادبا یہی کہتے ہیں کہ آپ کی پبلک ریلیشننگ اچھی نہیں ہے۔ بغیر تعلقات، جان پہچان اور شیریں گفتگو کے آپ کو آپ کا حق نہیں مل سکتا۔ آپ تو مردوں سے بہت فاصلے پر رہتی ہیں۔ سرکاری اداروں، بڑے شعراء ادبا اور ادبی تنظیموں کے سربراہوں سے دوستانہ رویہ رکھیے، اپنی تنظیمیں بنوائیے، ادبی میگزین اخبارات کے سربراہ آپ کو پروموٹ کریں گے، تحفے تحائف دیجیے، لیجیے، جہاں قائد اعظم کی ضرورت ہو وہ بھی استعمال کیجیے، کچھ دنیا داری سیکھیے، بغیر لیے دیے تو یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی، میرے ادبی کام سے سب ادارے واقف ہیں، اکیڈمی ادبیات میں بھی میری ساری کتب اور کلیات ہیں۔ جب اللہ چاہے گا ایوارڈ مل جائے گا۔ ویسے بھی میں کسی ایوارڈ اور اعزاز کے لیے نہیں لکھتی، بنی نوع انسان کی فلاح و خوشحالی کے لیے لکھتی ہوں، بہتری اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ مجھ سے جو کام لینا چاہتا ہے وہی کر رہی ہوں۔ اگر ایوارڈ میرا حق ہے تو وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے گا۔ جی کیوں نہیں، میں ہوں نا، سب سے میرے تعلقات ہیں، میں نے بہت لوگوں کو پروموٹ کیا ہے، کئی کتب لکھوا کر دی ہیں، زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ آپ بھی تو بس تھوڑا تعاون کیجیے۔ پھر دیکھیں، میں مسکرائی۔ نہیں بھائی، آپ مجھے میرے کام کو تسلیم کرتے ہیں، یہی بس میرا ایوارڈ ہے۔ آپ نے یہ بھائی کی رٹ کیا لگا رکھی ہے؟ دوست کہیے، دوست، تھوڑا تعاون کیجیے بس۔ اور وہ زیر لب مسکرائی۔ نہیں، مجھے ایسا کوئی عروج نہیں چاہیے میرے بھائی، آپ تھوڑا بہت تعاون کیجیے بس، پھر دیکھیے۔ نہیں، میں نے نہیں کہا، اور کہا نہیں بھائی، شکریہ۔ یہ سنتے ہی فون کٹ گیا۔ اچھا، اس میں سے کچھ جملے میں نے خود کاٹ دیے ہیں تو بہرحال یہ ہمارے ادبی جو ہمارا صورتحال ہے، اس میں کچھ ایسی صورتحال ہے ادبی ہماری کہ یہاں پر تھوڑا سا انسان کو۔ اچھا، میں اب کچھ شعری اصناف آپ کو وہاں ضرور سناتی ہوں، میری یہ رکھی ہوئی تھی، چھوٹی سی رکھی تھی، چند ایک سناتی ہوں۔ اور کچھ شاعری کے تو چونکہ بہت سے مختلف موضوعات ہیں شاعری میں میرے پاس، کیونکہ میں نے نظم کی چونکہ 70 اصناف پر شاعری کی ہے، مگر وہ کہاں ہے کہ میری چھوٹا سا وہ برشر جو تھا اس سے ابھی میرے پاس اتنا برشر مجھے چاہیے تھا۔ چلے خیر، اس میں سے ہی سنا دیتی ہوں، میں چھوٹی اس میں سے دیتا ہوں۔ اچھا، میں آپ کو یہ میں نے جن اصناف پر شاعری کی ہے، میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو نظم کے 70 اصناف پہ میں نے بات کی ہے کہ ان پر میں نے شاعری کی ہے، تو کراچی میں ایک روڈ بھی میرے نام سے منسوخ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میری جو یہ نظم کی کلیات آئی ہے، یہ سامنے سے روشنی اصل میں دھوپ کی آ رہی ہے میرے چہرے پر، فیس پر، تو فیس ہو رہا تھا۔ جن اصناف پہ شاعری کی ہے ان میں ماہیہ، ہائیکو، سیریو، رنکا، نظم مارہ، سیگانیہ، سونیٹ، مستزاد، سہ مصری، سوالنے، کہہ مکرنی، صنعت غیر منقوط، آزاد نظم، صنعت توشی، چہار بیت، تکونی، قصیدہ، رباعی،
मसलस मरबा मुखम्मस मुसब्बा मुसम्मन मतस्सा माशर तरकीबन तरजीबन तराइले हीर मरसिया काफ़ी वाई और सुलासी नज़माने क़िता तिरविनी यक मिस्री सैलगी कसीदा खुमासी खुमासी को पंचगाना भी कहते हैं सद्दासी मसनवी पहेली हिजो पैरोडी तज़मीन और कवाली तंज़ुमिज़ा मिली नगमा तिराना नसरी नज़्म गीत ढोला लोरी सेरा रुखसती और नात हमद मनाजात मनकबत नोहा सलाम मरसिया चेसियाँ चेस और रेख्ती तहर अशुब शहर अशुब वासौख। और फिर उसके बाद कुछ और असनाफ हैं और कुछ पंजाबी की हैं, कुछ सिंधी में असनाफ जो लिखी जाती हैं उनके हवाले से भी घड़ियाँ हैं, अठवार है, सहउर्फ़ी है, बारह माह चौ मिस्री चकली बोलियाँ वगैरह पंजाबी असनाफ हैं। और हमरचू हो जमालो छल्लो गेज पंजरा गाह गावन बेड़ा गनान ना नड़ बैत ढोलो मौलूद शरीफ दोहे दोड़े वगैरह ये सिंधी असनाफ की कुछ हैं। और अनवर शेख मरहूम हमारे जो थे ये इन्होंने बहुत से तजुर्बात किए हैं उर्दू अदब की शायरी में, उर्दू अदब में और शायरी में। तो उसमें उन्होंने कुछ इख्तरात की हैं, मकालमा राज़ो नियाज़ कहमन गज़ाला और मतज़ाद नज़्म मंजूमा तिकोनी भी उनकी एक इख्तरा है तमसीलचा और इसी तरह की और है। तो ये सारी असनाफ़ हैं नज़मों की जिन पर मैंने ये 70 असनाफ़ हैं जिन पर मैंने शायरी की है। तो ये जो असनाफ़ हैं इसी हवाले से कराची में चूँकि काम था मेरा 40-45 साल का था तो इस पर जो था मैंने ये चूँकि काम किया था तो ये काम ये अफसाना नावल मैंने देख ही नहीं थी लिखा है नदीम अफजल का अफसाना नावल गज़ल नज़म में सबसे ज़्यादा मौसर किसको समझते हैं। जी आपका सवाल ठीक है। देखिए अदब की हर सिंफ अपनी जगह अहम है और चाहे वो अफसाना हो नावल हो गज़ल हो नज़म हो हर सिंफ का अपना एक मकाम है मर्तबा है और अहम है। और लेकिन शायरी को हम इसलिए अहम समझते हैं कि शायरी मुख्तसर लफ्ज़ों में हम बड़ी से बड़ी बात कह जाते हैं, मुख्तसर अल्फाज में हम ज़्यादा अच्छी तरह से इजहार कर देते हैं उस बड़ी से बड़ी बात का जो कि कई सफ़ात में हमें अफसाने में लिखनी पड़ेगी या हमें नस्र की शक्ल में लिखनी पड़ेगी। तो ये इस वजह से शायरी नेचुरली बात है कि गज़ल नज़्म और शायरी जो है वो ज़्यादा अहम है अदब में समझी जाती है और है भी। लेकिन जहाँ तक शायरी में नज़्म और गज़ल की बात जब आ जाती है तो नज़्म लिखना कोई आसान काम नहीं है और दुनिया में जिन उदाबा ने अपना मकाम और मर्तबा बनाया है वो नज़्म की बदौलत ही बनाया है क्योंकि नज़्म जो है वो आपके अहद की तारीख़ लिखती है। नज़्म जो है वो आपके इर्द गिर्द के सारे मौज़ूआत को कवर करती है। नज़्म के लिए आपको एक यकसुई चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए और आपको आपके अंदर मेहनत और लगन की एक क़ुव्वत और ताकत चाहिए क्योंकि वो आपको एक जगह बैठ कर नज़्म लिखने का काम करना पड़ता है। उसके लिए ये नहीं है कि आपने नज़्म के लिए एक उन्वान सोचा और बस आपकी नज़्म हो गई, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको आपका ऑब्जर्वेशन, आपका तजर्बा, आपका मुशाहिदा, ये सारी चीज़ें, आपका मुताला, ये सब चीज़ें भी कारामद उसके लिए होती हैं और उसके लिए वक्त तलब भी काम है वो। जबकि गज़ल जो है एक ऐसी सिन्फ है जिसमें गज़ल का हर शेर एक अपने पूरे मफ़हूम के साथ और मायने के साथ और अपने एक पूरी हैत के साथ जो है वो मुकम्मल होता है एक शेर। अगर आपने एक शेर पढ़ लिया तो आपको सारी बात समझ में आ गई। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए 15 या 20 अशार की गज़ल लिखें या नज़्म की सूरत में आप मेहनत करें। तो गज़ल इस लिहाज से आसान काम है नज़्म के मुकाबले में। तो लेकिन गज़ल और नज़्म दोनों साथ साथ चलती हैं। गज़ल सबसे पसंदीदा सिन्फ है हर शायर की क्योंकि बहुत खूबसूरत ये सिन्फ है गज़ल जो है और इसी में शौरा अदबा जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इज़हार ख्याल करते हैं अपना। लेकिन इसके साथ साथ नज़्म भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्लामा इकबाल का आज मर्तबा और मकाम जो है आप देखते हैं उनका नज़्म की वजह से है। इसी तरह आप दुनिया भर के जितना भी अदब उठा के देख लें, चाहे वो पाकिस्तानी अदब हो या बाहर का अदब हो, उसमें वही शौरा अदबा हैं जिन्होंने मकाम बनाया है जो गज़ल के साथ साथ नज़्म में भी उन्होंने काम किया है। तो और नज़्म का मैंने आपको बताया कि नज़्म की टेक्निक इतनी ज़्यादा है, यानी 70 टेक्निक्स हैं जिन पर आप जिन तरीक़ों से आप नज़्म लिख सकते हैं। तो नज़्म में वुसअत भी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन नज़्म थोड़ा सा मुश्किल काम है और हमें अगर आसानी गज़ल में ही होती है तो हम ज़्यादातर गज़ल ही का इंतखाब करते हैं और गज़ल ही हम जो है वो कोशिश करते हैं कि गज़ल को ही हम गज़ल में ही काम करें। इसके अलावा नावल का अपना एक मकाम है, अफसाने की अपनी एक अहमियत है। वो बातें जो हम इसमें नहीं कर पाते, नज़्म में और शायरी में नहीं कह पाते, वो गज़ल वो अफसाने में नावल में
اور تحقیق میں تحقیق ہے، تنقید ہے، آپ کے تراجم ہیں، آپ کے نثر نگاری کے ادب کے بے شمار نئے دیگر شعبے ہیں، آپ کے تذکرے ہیں، تبصرے ہیں، یہ سارے شعبے، ان سب کی بہت اہمیت ہے، لیکن آج ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ساری چیزیں ہمارے پیچھے رہ گئی ہیں، اور آج ہمارا صرف مقصد یہ رہ گیا ہے کہ ہم چند غزلیں لکھ لیں. عامر وکیل صاحب بھی یہاں پر ویلکم، خوش آمدید. تو اور چند غزلیں لکھ لیں اور زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہم شارٹ کٹ اپنائیں اور شہرت حاصل کر لیں، چاہے لکھ لیں یا لکھوا لیں، جو بھی صورتحال ہو، شاعر بن جائیں، آپ ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے، اور آپ جہاں جس سے جو کام نکلوانا چاہیں اپنا کام نکلوا سکتے ہیں. آج ہم نے شاعری کو، جو اس کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا شاعری کا، اور شاعری اتنی اہم چیز ہے، ہمارے ادب کا اتنا اہم حصہ ہے، لیکن اس شاعری کو ہم نے آج اس دور میں بہت ہی جو ہے غیر معتبر کر دیا ہے، اور بڑی عجیب و غریب کہانیاں اور صورتحال سامنے آتی ہے. بہرحال اب اس کی بات نہیں کرتے کیونکہ پھر وہ صحیح نہیں رہتا. میں کچھ شعر سناتی ہوں آپ کو. چڑھا دیے گئے سولی پر اور جرم یہ تھا، چڑھا دیے گئے سولی پر اور جرم یہ تھا، ہم اپنے عہد کی سچائی کی علامت تھے. چڑھا دیے گئے سولی پر اور جرم یہ تھا، ہم اپنے عہد کی سچائی کی علامت تھے. انا کے گھاؤ لیے دل پہ مسکراتے رہے، ستم کے شہر میں ہم صبر کی بشارت تھے. اور ایک اور سن لیجیے. یہ ہمارے پاس نہ سرمایہ اور نہ جاگیریں، ہمارے پاس نہ سرمایہ اور نہ جاگیریں، ہمارے پاس ہے خوابوں کی صرف تعبیریں. یزید وقت کی بیت بھی کیوں کریں زیبی، ہمیں قبول ہیں ظلم و ستم کی زنجیریں. میری زمین نہیں بدلی، گگن نہیں بدلا، ہزار دکھ سہے لیکن وطن نہیں بدلا. جو کہتی تھی وہی کہتی رہوں گی میں ہر دم، کہ مصلحت کی وجہ سے سخن نہیں بدلا. اور وطن کی حالت ابتر کو دیکھ کر ہر شخص، وطن کی حالت ابتر کو دیکھ کر ہر شخص دلوں میں رنج و الم اور ملال رکھتا ہے. یزید وقت کی فرعون کی حقیقت کیا، ہر آفتاب طلوع و زوال رکھتا ہے. اور ایک زمانے میں بہت زیادہ خودکش دھماکے ہوتے تھے، اس حوالے سے تھا. کہتے ہیں خودکش دھماکوں کو جہاد، کہتے ہیں خودکش دھماکوں کو جہاد، جان لیوا دینداری ہو گئی. ملتے ہیں اجرت پہ قاتل جا بجا، موت بھی اب کاروباری ہو گئی. اور جو صاحب ثروت ہے وہ مست ہے دولت میں، یہ آج کل تو یہی صورتحال ہے. جو صاحب ثروت ہے وہ مست ہے دولت میں، مزدور سے پوچھو یہ کس درجہ گرانی ہے. جو صاحب ثروت ہے وہ مست ہے دولت میں، مزدور سے پوچھو یہ کس درجہ گرانی ہے. جان لینا غریبوں کی مزدور کا خون پینا، زردار قبیلوں کی عادت یہ پرانی ہے. تو یہ سماج ظالم اور مظلوم کا چلتا ہی رہتا ہے. ہمارا تو غربت یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں غریب بیچارہ پستا ہی رہتا ہے ہر وقت. پھر زخم تازہ دیں گے مجھے میرے رشتہ دار، پھر زخم تازہ دیں گے مجھے میرے رشتہ دار. رشتے قریب کے بھی خطرناک ہو گئے، کچھ سال پہلے ہم بھی بہت سادہ لو تھے، کچھ سال پہلے ہم بھی بہت سادہ لو تھے، دنیا کو دیکھ دیکھ کے چالاک ہو گئے. اور جی بعد مطلب کے جو بن جاتے ہیں دشمن اپنے، ان رفیقوں کی سی عادات کہاں سے لاؤں. بعد مطلب کے جو بن جاتے ہیں دشمن اپنے، ان رفیقوں کی سی عادات کہاں سے لاؤں. برگ گل کی طرح مدت ہوئی بکھرے مجھ کو، برگ گل کی طرح مدت ہوئی بکھرے مجھ کو، اب وہ گزرے ہوئے لمحات کہاں سے لاؤں. اور میں یہاں ایک نظر دیکھوں کہ میرے ساتھ ساتھ کون ہے. اچھا تخلیق، میں عورت ہوں، تخلیق کے جہاں کا ایک سبب بھی اس نظر سے شروع کیجیے. اچھا جی، برسوں سے چند غزلوں پہ بسے ہیں سارے ندیم افضل صاحب. جی بالکل، ابھی ترجمہ نہیں ہوا. رپلائنگ ٹو اچھا فیصل اکرم صاحب، ندیم افضل صاحب، اور یہ ہماری شرما صاحبہ ہیں. بہت بہت آپ سنوں کی محبت، آپ میرے ساتھ یہاں پر رکے ہوئے. اور جس وقت ندیم افضل صاحب تیری دل نشین دنیا بھی جنت کی طرح ہوتی. بالکل فیصل اکرم صاحب. اچھا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو وہ والی ترونی کے بارے میں کچھ بتائیے. بے شک میں، ہاں اچھا وہ آپ نے مجھ سے کہا تو میں نے آپ کے سوالوں دیکھے. میں آپ کو بتاتی ہوں. ترونی دیکھیے، ترونی جو ہے وہ ہمارے گلزار انڈیا کے جو گلزار صاحب ہیں، ہدایت کار موسیقار، اور ہدایت کار جو ہے ہمارے شاعر بھی ہیں. گلزار صاحب بہت مشہور نام ہے. انہوں نے ترونی ایجاد کی تھی. یہ ایک 100 مصری نظم ہے جس کے ہر مصرے میں ایک سوال ہوتا ہے.
تو उन्होंने ये मैंने तिरविनियाँ लिखी और मेरा आलमी सतह पर शायरात में पहला मजमू आया और 1000 तिरविनियाँ तकरीबन मैंने लिखी। तो मैं अपनी कुछ तिरविनियाँ आपको यहाँ सुना देती हूँ। खैर व शर का मरहला है ज़िंदगी, मुस्तकिल एक मसला है ज़िंदगी। से मिस्री नज़्म है। खैर व शर का मरहला है ज़िंदगी, मुस्तकिल एक मसला है ज़िंदगी, जाने किसका फ़ैसला है ज़िंदगी। और एक और सुनिएगा, वो जो, ये मुझे खुद भी पसंद है, वो जो गुड़िया बेच रही है, वो जो गुड़िया बेच रही है, चुपके चुपके सोच रही है, मेरी कीमत कितनी होगी। वो जो गुड़िया बेच रही है, चुपके चुपके सोच रही है, मेरी कीमत कितनी होगी। और एक ही दीन है नबी भी एक, एक ही दीन है नबी भी एक, काश होते सब उम्मती भी एक, बट गए हैं हज़ार फ़िरक़ों में। और भूख बीमारी जहालत तशनगी, भूख बीमारी जहालत तशनगी, रिश्वतें महंगाई तारीकी का राज, किस कदर है दिल नशी कायद का ख्वाब। और आपको सुना देती हूँ, देखो सुखनवर की जागीरें, देखो सुखनवर की जागीरें। देखिए हमारी जागीरें, ये जो मेरे अतराफ ढेर पड़ा हुआ है किताबों का और कागज़ों का, तो ये हर जितना जो भी सुखनवर है और हकीकी कलमकार है, उसकी जागीर, उसका यही सब कुछ है। तो देखो सुखनवर की जागीरें, देखो सुखनवर की जागीरें, कोने में लेकर बैठा है कागज़ पर लिखी तहरीरें। देखो सुखनवर की जागीरें, कोने में लेकर बैठा है कागज़ पर लिखी तहरीरें। तो हमारी जागीरें यही हैं। तो ये इस तरह से ये से मिस्री नज़में हैं। और शेरों की सूरत में ज़ेबी, शेरों की सूरत में ज़ेबी, खुद को लिखती रहती हूँ मैं, दिल की बोली कोई न समझे। तो ये तिरविनी है जो इंडिया के गुलजार साहब ने ईजाद की थी और जिस पर मैंने 1000 तिरविनियाँ लिखी और आलमी सतह पर शायरात में मेरा बलीन मजमू आया। सैगानियाँ ये मोहसिन आज़म मोहसिन मलियाबादी कराची के, उन्होंने इसकी अख्तरा की है। ये इन्होंने पहले एक बहर मख्तस की थी, बाद में इसको बहर से आज़ाद कर दिया, किसी भी बहर में लिखी जा सकती है। क़ल्ब हमारा टूट गया तेरी बदगुफ्तारी से, तेरी दिल आज़ारी से, ये भी एक मिस्री नज़्म है। और ये मैं आपको हनीफ़ सदी ने ईजाद की थी, एक से मिस्री के नाम से ही से मिस्री नज़्म। और ये एक मैं आपको सुना देती हूँ, बच्चों जैसा कब होता है अपना पापी मन, बच्चों जैसा कब होता है अपना पापी मन, झूठ का मैल चढ़ा है हम पर, नफ़रत अपना धन, बैर है सबसे बस दौलत का आदि अपना तन। तो ये 3 मिसरे होते हैं और तीनों मिसरों में लतीफ़ काफ़ी की पाबंदी करनी पड़ती है। रुबाई में सुना देती हूँ, ये रुबाइयात जो है, आवाज़ पलट पलट के भी आई है, आवाज़ पलट पलट के भी आई है, इस गुंबदे जिस्म में भी तन्हाई है, आवाज़ पलट पलट के भी आई है, इस गुंबदे जिस्म में भी तन्हाई है, ए ज़ेबी मुझे अभी पता कब है ये, किस किस से यहाँ मेरी शनासाई है। और इसी तरह से अलगी है, वो भी एक मिस्री नज़्म है। ये इसको भी 3 मिसरों में कहा जाता है। उजड़ता है कोई देखो, बसाया है किसी ने घर, नशेब ऐसा फराज ऐसा। और हाइको तो हम सबको पता है, और हाइको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई है। 1-2 में हाइको आपको सुनाती हूँ। हाथों में असनाद, दफ्तर दफ्तर फिरते हैं रिश्वत जिंदाबाद, हाथों में असनाद, दफ्तर दफ्तर फिरते हैं रिश्वत जिंदाबाद, अदल का ये मियार, मुजरिम को आज़ादी है नाकर्दा को दार। और कातिल है अनजान, चेहरों की कब होती है गोली को पहचान। और जी ये भी सुन लीजिए, हर घर रोशन है जाने मेरे घर का क्यों सूरज दुश्मन है, नाम के भूखे हैं मंजर नामे के शौकीन आगे पीछे हैं, नाम के भूखे हैं मंजर नामे के शौकीन आगे पीछे हैं, कैसी महंगाई गुर्बत से तंग आकर माँ बच्चे बेचाई, कैसी महंगाई गुर्बत से तंग आकर माँ बच्चे बेचाई। और एक चेसियाँ आपको सुनाती हूँ, ये अमीर खुसरो से मुश्तक है। मुझसे खाली मकान बोलेगा, मुझसे खाली मकान बोलेगा, मैं जो खामोश हो गई तो फिर बाद मेरे जहान बोलेगा, मुझसे खाली मकान बोलेगा, मैं जो खामोश हो गई तो फिर बाद मेरे जहान बोलेगा। और
सेनरियो आपको मैं सुनाती हूँ। सेनरियो असल में हाइको की तर्ज पर लिखी जाती है, वही उसके हाइको का जो एक पैटर्न है। हाँ जी, अवार्ड लेने का तरीका तो ठीक बताया आपने, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है। तो थोड़ा सा आप हंस लें, मैं बहुत संजीदा शायरी कर रही हूँ। तो सीनरी में जो है ना मिज़ा लिखा जाता है, और मिज़ा जो है वो फॉन्ट इस तरीकाकार इसका वही है, वो सेलिबल्स होते हैं जो हाइको के होते हैं, उसी तरीके से लिखी जाती है, वही वज़न होता है इसका। लेकिन बस इसमें मिज़ा लिखते हैं, और से जो अपनी हाइको होती है उसमें संजीदा वज़न भी लिखे जाते हैं। तो मिज़ा में आप सुन लीजिए, एक सुना रही हूँ शायरों से माजरत के साथ। अच्छा शायर है, अच्छा शायर है, औरत को तकने में वो कितना माहिर है। अच्छा शायर है, औरत को तकने में वो कितना माहिर है। और जी मैं अब आपको माहिया सुनाती हूँ। लेकिन माहिए जो है ना वो दो तरीके से लिखे जाते हैं, पर आप पंजाब के कुछ शौरा जो हैं वो 1.5 मिसरी माहिया लिखते हैं। उनके 1.5 मिसरी माहिया जो है वो उस वज़न में लिखते हैं वो। तो मैं पहले वो सुना देती हूँ आपको। ये तकलीफ़ सही उसने दार पे लटका है, हक बात कही उसने। आप आधा मिसरा पहले रहा, तकलीफ़ सही उसने, और फिर पूरा हुआ दार पे लटका है, हक बात कही उसने। दूसरा माहिया सुनिए। ये इश्क समंदर है, डूब गया जो भी वो शख्स कलंदर है। ये इश्क समंदर है, डूब गया जो भी वो शख्स कलंदर है। तो ये 1.5 मिसरी माहिया है। और चिराग हसन हजरत ने 6 मिसरी माहिया ईजाद किया था, और उसकी भी बहर, उसकी मामूली सी बहर में फ़र्क है। जैसे वो कहते हैं, सब खेल नसीबों के फाकों से भी मरते हैं बच्चे ये गरीबों के। सब खेल नसीबों, ये मैंने कहा है, मतलब 6 मिसरी माहिया जो उनकी बहर में जो चिराग हसन हजरत ने बताया है कि 3 मिसरों में कहा जाता है। तो मैंने लिखा, सब खेल नसीबों के फाकों से भी मरते हैं बच्चे ये गरीबों के। तो ये मैंने आपको ये सुनाया। वाई भी है, अब वाई लंबी हो जाती है इसलिए मैं यहाँ सुना नहीं सकती हूँ आपको। वाई शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई की जो है वो इकरा है, और उन्होंने बहुत सी रुबाइयात कही हैं। सवाल ने मुझसे शायद पूछा है अभी यहाँ पर जी, सवालने का मैंने शुरू में जिक्र किया था कि सवालने जो है वो मैंने चूँकि 70 नज़में जब लिखी, 70 नज़मों के असनाफ लिखी शायरी की 70 नज़मों पर, तो अल्लाह ताला ने एक सन मुझसे ईजाद की, और ये सवालने है। ये एक 6 मिसरी नज़म है जिसके हर मिसरे में एक सवाल होता है, और बैनुल सतूर आपको जवाब मिल जाता है। तो ये मैं आपको सुनाती हूँ। खाको आतिश की दास्तां क्या है, खाको आतिश की दास्तां क्या है, रूह और तन के दरमियाँ क्या है, मुख्तसर क्या है, बेकरां क्या है। 3 मिसरे हैं, तीनों मिसरों में सवाल होगा। खाको आतिश की दास्तां क्या है, रूह और तन के दरमियाँ क्या है, मुख्तसर क्या है, बेकरां क्या है। और इसी तरह से है दूसरा, मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए, वहशत कहाँ से लाई रवानी ये आँख में, वहशत कहाँ से लाई रवानी ये आँख में, कितने समंदरों का है पानी ये आँख में, क्या क्या नहीं है जुल्म ज़मानी ये आँख में। 3 मिसरे, तीनों मिसरों में सवाल और बैनुल सतूर आपको जवाब मिला कि तीसरे मिसरे में देखिएगा, वहशत कहाँ से लाई रवानी ये आँख में, कितने समंदरों का है पानी ये आँख में, क्या क्या नहीं है जुल्म ज़मानी ये आँख में। तो ये ज़माने का जुल्म है। बैनुल सतूर आपको जवाब मिला कि ज़माने का जुल्म है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा और आँख से बहता ही चला जाता है। और इसी तरह से मुझे क्यों कर्ब में ज़ंजीर करना चाहता है, मुझे क्यों कर्ब में ज़ंजीर करना चाहता है, रुलाता रहता है दिन रात वो, आखिर मुझे क्यों वो ज़ेबी से मुझे क्या मीर करना चाहता है। तो मीर तकी मीर का हवाला हम सब जानते हैं, गमोंदो का हवाला है। तो ये 6 मिसरी नज़म मेरी अख्तरा है जिसमें हर मिसरे में सवाल और बैनुल सतूर आपको जवाब भी मिल जाता है। बहुत सारी हैं, मैं पूरी मेरी किताब है इसके ऊपर। और जो है मैं अब आपको 2-3 चीज़ें और सुनाती हूँ। कैमू करनी मैंने नहीं सुनाई जी, बिल्कुल कैमू करनी आपको सुना देती हूँ। कैमू करनी अमीर खुसरो की ईजाद है, ये 4 मिसरों में लिखी जाती है। तो ये मैं आपको सुना देती हूँ। बच्चे ठहरिएगा जी। कैसा बरगो बार शजर है, साया भी इसका घर घर है, इसके बिना जीवन वीरा, ऐस सखी रब ना सखी माँ। तो ये एक मैंने आपको कैम करनी सुनाई है। दोहे में आपको सुनाती हूँ। दोहा जो है वो कई तरीक़ों से लिखा जाता है, मतलब उसमें मात्रे होती हैं। दोहों में 48 मात्रे होते हैं, 56 मात्रे होते हैं, 52 मात्रे होते हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ मात्रों में दोहे लिखे जाते हैं।
तो जो चव्वन मात्रे के जो दोहे हैं वो उसको सरसी छंद दोहा कहा जाता है। और ये आली चाल जमीलुद्दीन अली साहब ने इन्हीं यानी चव्वन मात्रों में ज़्यादातर दोहे कहे हैं, तो वो आली चाल दोहे कहलाए इसी वजह से। वैसे इसका नाम सरसी छंद दोहा है। बाप हुआ है बूढ़ा फिर भी मेहनत करने जाए, बाप हुआ है बूढ़ा फिर भी मेहनत करने जाए, सच कहता है नहीं तो उसको रोटी कौन खिलाए। बाप हुआ है बूढ़ा फिर भी मेहनत करने जाए, सच कहता है नहीं तो उसको रोटी कौन खिलाए। और एक और सुन लीजिए, मुनसिफ भी बिकता है यहाँ पर, यह है अनोखी बात। मुनसिफ भी बिकता है यहाँ पर, यह है अनोखी बात। देख जनता भी नीर बहाए, कोई नहीं है साथ। और ये भी है, जिसके पास है दौलत शोहरत साथ चले संसार, जिसके पास है दौलत शोहरत साथ चले संसार, सबके लबों पर ऐसे मुनिश की देखी जय जयकार। तो ये सरसी छंद जो था वो मैंने आपको सुनाया। इसी तरह से जो है वो 48 मात्रे भी होते हैं, वो मैं आपको सुना देती हूँ। दोहे के दोहा छंद कहलाता है वो। मैं भी लिखती हूँ गज़ल पास मेरे हैं नीर, मैं भी लिखती हूँ गज़ल पास मेरे हैं नीर, मेरे रहबर रहनुमा गालिब मोमिन मीर। और आगे सुन लीजिए, चलती फिरती धूप है तेरा रूप स्वरूप, फिर भी तू मगरूर है ढल जाएगी धूप। चलती फिरती धूप है तेरा रूप स्वरूप, फिर भी तू मगरूर है ढल जाएगी धूप। और मैं कैसे पाता उसे, मैं तो हूँ मजबूर, वो ठहरी एक हूर सी मैं ठहरा मजदूर। तो ये था दोहे छंद है। इसी तरह जो है वो दोहा जो 56 मात्रे भी होते हैं, तो 56 मात्रों में भी लिखते हैं। तो है, खेतों में हरियाली होगी हर एक डाल पे फल, खेतों में हरियाली होगी हर एक डाल पे फल। ये 52 मात्रे का मैं आपको सुना रही हूँ। खेतों में हरियाली होगी हर एक डाल पे फल, वादी से निकलेगा सोना आज नहीं तो कल। आमीन, अल्लाह करे कि बिल्कुल इस तरह से हो। खेतों में हरियाली होगी हर एक डाल पे फल, वादी से निकलेगा सोना आज नहीं तो कल। ये 52 मात्रे हैं। और इसी तरह 56 मात्रे भी होते हैं। तेरे बिना है सूना सूना आँखों का ये दर्पण, तेरे बिना है सूना सूना आँखों का ये दर्पण, तेरी कृपा हो तो हरा हो मेरा मन आंगन। तो ये दोहे हैं जो मैंने मुख्तलिफ उसमें कहे हैं। दोहे की जो मुख्तलिफ उसमें जो मात्रे, जिन मात्रों में वो लिखे जाते हैं उनमें मैंने कहे हैं। और मैं कुछ आपको, किसी ने कुछ सवाल तो नहीं पूछा हुआ, पहले मैं वो देख लूँ। जी कौन कौन है? नदीम अफजल साहब, ठीक है, सवाल के बारे में कुछ बताइए। मैंने भी बताया आपको, कुछ बात कीजिए। जी आर.एन. कंवर साहब, खावर साहब है, आर.एन. खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर हैं। और ये हमारे पास हैं गुरु चारान साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर हमारे साथ हैं। और अशफाक साहब हैं, अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आप सब मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। नदीम अफजल साहब, अच्छा हमारे पास न सरमाया और न जागीर है, हमारे पास जी बेशक बिल्कुल। और जी बिल्कुल आप लोगों को मैं देख रही हूँ यहाँ पर सब लोगों को, और आप सब लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब मेरे साथ यहाँ पर हैं। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, अच्छा शायर है, औरत को तकने में वो कितना माहिर है। जी बिल्कुल। और मुझे क्यों कर्ब में जंजीर करना चाहता है, खेतों में हरियाली होती। जी खावर साहब और इमरान अंसारी साहब भी हमारे साथ हैं। तो अच्छा, आपने मुझसे फरमाइश की निसाई शायरी की, वो मैं नज़्म सुना दूँ। वो नज़्म जी बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। मिज़ा भी मैं भी आपको सुनाती हूँ, क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को उदास किया है तो मैं आपको जी आगे ये मैं वो नज़्म आगे सामने मेरे इतराफ़ इतने सारे कागज़ हैं, लेकिन बाहर वो नज़्म मिल गई मुझे। अभी इन्होंने कहा था मैं औरत हूँ। ये निसाई लबुलहजा है। इसका पहले एक शेर मुझे खुद भी बहुत पसंद है। उसने अशिया की तरह बढ़ता मुझे हो मोहब्बत भी जैसे घरदारी, उसने अशिया की तरह बढ़ता मुझे हो मोहब्बत भी जैसे घरदारी। और ये तो एक शेर था। अब मैं एक इसी हवाले से एक नज़्म है निसाई लबुलहजे की, औरत की हैसियत। मैं औरत हूँ तख्लीक़े जहाँ का एक सबब भी हूँ। यहाँ ज़ीशान अकबर ने भी फरमाइश की थी, मैं औरत हूँ तख्लीक़े जहाँ का एक सबब भी हूँ, मैं बिल्कुल बेतलब हूँ और ज़माने की तलब भी हूँ।
میں عورت ہوں تخلیق جہاں کا ایک سبب بھی ہوں، میں بالکل بے طلب ہوں اور زمانے کی طلب بھی ہوں، میں دیوی پیار کی ہوں، حسن ہی میرا وسیلہ ہے، خلوص و سادگی زیور وفا میرا قبیلہ ہے، ہنر جینے کا بخشا علم کا پرچم بھی لہرایا، پلے ہیں گود میں میری جنہوں نے مرتبہ پایا، وفاداری محبت ہی فقط میرا حوالہ ہے، میری اقدار کا ہمسر فقط کوہ ہمالہ ہے، وفاداری محبت ہی فقط میرا حوالہ ہے، میری اقدار کا ہمسر فقط کوہ ہمالہ ہے، پڑھا ہے میر و غالب عصمت و منٹو کو بھی میں نے، پڑھا ہے میر و غالب عصمت و منٹو کو بھی میں نے، یہ رنگوں میں بسی ہر داستاں گویا لکھی میں نے، بہت فرسودہ رسموں پر جلائی بھی گئی ہوں میں، بہت فرسودہ رسموں پر جلائی بھی گئی ہوں میں، قدامت کے طریقوں سے ستائی بھی گئی ہوں میں۔ اور کچھ اشعار ذرا بہت زیادہ تلخ سے ہو جاتے ہیں، میں چھوڑ کے سمجھتی ہوں چھوڑ دوں سے۔ تجارت بھی میری ہوتی رہی تہمت سہی میں نے، تجارت بھی میری ہوتی رہی تہمت سہی میں نے، گزاری ہے بہت مرمر کے گویا زندگی میں بازاروں میں مال صرف کی صورت بکی بھی ہوں، میں بازاروں میں مال صرف کی صورت بکی بھی ہوں، میں اشیاء کی طرح اکثر ترازو میں تلی بھی ہوں، عدالت کے کھٹیرے میں پے انصاف آئی ہوں، مگر آخر میں ہر طرح سے میں مجرم ہی ٹھہری ہوں، انا کی بھینٹ چڑھ کر آگ کے شعلوں میں جلتی ہوں، زمین میں دفن ہو جاتی ہوں اور بے موت مرتی ہوں، بیاہی جاتی ہوں قرآن سے بھی میں یہاں اب تک، بیاہی جاتی ہوں قرآن سے بھی میں یہاں اب تک، کہ زندہ ہے یہاں پر کاروکاری کا جہاں اب تک، بہت ہی پست ہوں اور لائق دشنام ہوں میں ہی، زنا بالجبر میں بھی مورد الزام ہوں میں ہی، میں انسان ہوں فرشتہ اور ولی میں بھی نہیں کوئی، میں انسان ہوں فرشتہ اور ولی میں بھی نہیں کوئی، خطا کرتی ہوں گنگا کی دھلی میں بھی نہیں